power makes a person intoxicated. Those who get power, they become so much mad under the influence of power that they forget their duties and responsibilities. Hello friends, I am Shalabh Jain and today I am going to start your second chapter of Vistas the Tiger King, which has been written by Kalki. कई लोग इसको कल्कि भी पढ़ते हैं बिकॉज इट इज़ हिंदी वर्जन कल्कि. तो लॉर्ड विष्णु वाज कंसिडर्ड कल्कि. तो कल्कि और काल्कि इज़ द राइटर, एंड इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ हाईलाइटेड or you can say satirized the corrupt political system of India. Not today, but since ancient time, this practice has been going on. When a person acquires power, जब किसी के पास power आती है, the person becomes extremely selfish and he thinks only and only about himself. This story is also on the same theme. Secondly, what is the duty of the subordinates of the king? To show the king right path if the king is going in the wrong direction. But really, do they do so? No. They become sycophant. Sycophant का मतलब होता है चापलूस. They become sycophant. They become flatterer and they become yes man. Whether the king is going in the right direction or wrong direction, in order to maintain their position and in order to acquire the benefits given to them by king, they just say yes whatever king is saying. In this way, the king cannot come to know that he is going in the wrong direction. In this story, the same points have been discussed. So the story is the Tiger King. This is second chapter of Vistas, and one more point Kalki has highlighted in this story: willful killing of wild animals. ये तो आपको मालूम ही है कि in olden time people, especially rich one, used to entertain themselves by killing innocent wild animal, जिसे कहते हैं hunting. शिकार पर जाते थे पहले राजा महाराजा. But if you are killing wild animals just to protect yourself because somebody has predicted about your death by the hands of a tiger, so that is of course an injustice. यहाँ पर भी यही हुआ. In this story the main character is Tiger King. उसका नाम टाइगर किंग नहीं है, but he acquired the nickname Tiger King. आप अगर फर्स्ट पैराग्राफ बुक का पढ़ेंगे so you will find multiple names over here. All these names were assigned to the king later on, who became Tiger King. Maharaja Pratibandhapuram, or hero of the story, as you know, Highness Jamidar General Khalidar Major Satta Vagyar, means so many names has been given over here, so there is no need to go through these names. But in short, his name was Tiger King. And now, how he got the name Tiger King? Because he killed 100 tigers. Precisely, he had killed 99, but under his illusion, he had killed 100 tigers. टाइगर किंग इस इल्यूजन में था कि मैंने 100 टाइगर मारे हैं, बट एक्चुअली उसने कितने मारे थे? 99. अब आपको तो मालूम है आपके एग्जाम में आरटीसी भी आती है, तो हम उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. आरटीसी इज इंपॉर्टेंट है, एंड रैदर देन गोइंग वर्ड टू वर्ड आई विल लेट यू नो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि टाइम इतना आपके पास भी नहीं है कि एक एक वर्ड को आप पूरा फोकस होके पढ़ें. आपका पर्पस क्या है कि मेन पॉइंट्स आपको पता चले स्टोरी के, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दोज पॉइंट्स यू कुड जनरेट योर ओन आंसर्स. दिस paragraph is very very important from the examination RTC point of view, not from the question point of view. Right at the start, narrator कहता है Kalki, it is imperative. Imperative means important to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. According to Kalki, before starting the story, it is my duty to explain you some important point about Tiger King. Everyone who reads of him
will experience the natural desire to meet a man of his indomitable, indomitable, please focus this word, indomitable. Indomitable means extraordinary. जैसे मान लीजिए कोई आपको किसी पर्सन के बारे में बहुत सारी बातें बताए एग्जैजरेट करके, तो आपका भी मन करेगा यार वी शुड मीट दिस पर्सन. इन द सेम मैनर काल्की इज हाईलाइटिंग टाइगर किंग वॉज मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज. वैन यू लिसन हिज स्टोरी तो आपका मन भी करेगा कि यार इससे मिलना चाहिए, इस पर्सन को देखना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए. बट सॉरी, देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो सकती फ्रेंड्स. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अब नाउ, अब ध्यान से सुनना कि इन विच मैनर काल्की हैज़ हाईलाइटेड अबाउट डेथ ऑफ टाइगर किंग. क्या कहा उसने? देखो डायरेक्ट नहीं बोला उसने, क्या बोला उन्होंने? भरत इन रामायण देर इज रेफरेंस ऑफ भरत. भरत said to Rama about Dashrath, the tiger king has reached the final abode of all living creature. जैसे भरत ने भगवान राम को बोला था अपने फादर यानी कि उनके फादर दशरथ की डेथ के बारे में कि भैया फादर हैज रीच्ड टू द फाइनल अबॉर्ड. जितने भी हम लिविंग क्रिएचर्स हैं सबकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? गॉड. तो भरत ने अपने बड़े ब्रदर लॉर्ड राम को बोला कि हमारे जो फादर हैं दशरथ वो कहाँ चले गए हैं? फाइनल जर्नी पर चले गए हैं, फाइनल लिविंग प्लेस पर चले गए हैं. समझ लो ये भी टाइगर किंग भी अपने फाइनल अबॉर्ड पर चले गए हैं. तो यू कैन नॉट मीट हिम फेस टू फेस. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. तो सीधा सीधा नहीं बोला उन्होंने, बजाय डायरेक्ट बोलने के उन्होंने इस रेफरेंस पे आपको बताया. तो आरटीसी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई हैज दिस रेफरेंस ऑफ भरत एंड लॉर्ड रामा हैज बीन गिवन. So in order to explain the death of Tiger King, Kalki has given this reference. Got it? Now, the next important point. ये तो आपको मालूम है कि when a child takes birth in a poor or small family, तो the matter is just nothing. बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, he completed the cycle of his life or he passed away. But when a child takes birth in the royal family, in the family of a multimillionaire, it becomes a news. In the same manner, when the child later who became famous by the name of Tiger King, he took birth. So father of Tiger King called chief astrologer. इंडिया में कई लोग हैं जो होरोस्कोप को बहुत मानते हैं, पंडितों से एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं बच्चे के फ्यूचर के बारे में. इन द सेम मैनर टाइगर किंग्स फादर इनवाइटेड और कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, चीफ एस्ट्रोलॉजर टू फोरटेल, भविष्य बताने के लिए कि भाई मेरे बेटे का भविष्य बताओ. अब भविष्य बताने के लिए जब पंडित जी आएंगे तो वही तो देखते हैं ना कि जो पोजीशन है पर्सन की वो क्या है. अब एक टाइगर किंग, एक रिनाउंड पर्सन के बारे में आप अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हैं. जब आप किसी एक रिनाउंड पर्सन को उसके बच्चे के बारे में प्रेडिक्शन देंगे तो आप बहुत सोच समझ के देंगे. आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे बोलना क्या है. कुछ ऐसा ना बोल दूं भाई किंग है, पावर भी है हाथ में, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है. ए सिंगल रॉन्ग वर्ड माइट कॉस्ट माई डेथ. उसने क्या बोला? महाराज, द चाइल्ड विल ग्रो अप बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. इट मीन्स एस्ट्रोलॉजर एग्जैजरेटेड द पर्सनैलिटी ऑफ टाइगर किंग. कि सर आपका जो बच्चा है, किस बच्चे की बात कर रहे हैं? जो बाद में टाइगर किंग के नाम से फेमस हुआ. ये बनेगा वॉरियर ऑफ वॉरियर्स. वॉरियर का मतलब आपको मालूम है फाइटर, योद्धा. हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा सा अपने बिट्स को, अपने लिप्स को बिट किया, थोड़ा जो थूक था उसको स्वेलो किया. इसका तो ही वॉज नर्वस. ध्यान रखिएगा ये लाइन, देयर लिप्स एंड स्वालोड हार्ड. स्वालोड हार्ड मीन्स
जब आप नर्वस हो, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, दैट इज इन दिस वे, swallowed हार्ड। तो महाराज ने कहा, ये बोलो क्या मामला है, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर सेंटेंस। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, महाराज एक सीक्रेट है ये, और ये सीक्रेट मैं बताना नहीं चाहता। आप टाइगर किंग के फादर को ये बात बोल रहे हैं, एक महाराज को, एक किंग को, एक एम्परर को एक बात बोल रहे हैं कि सर एक सीक्रेट है लेकिन ये मैं बताना नहीं चाहता। तो पहली बात तो आपने बोल दिया कि सीक्रेट है और आप बताना नहीं चाहते। इज इट पॉसिबल कि किंग कहेगा ओके नो प्रॉब्लम, आप अपने पास रखो? नो। तो उसने कहा अगर सर कहो तो बोलूं। तो महाराज ने कहा हाँ बोलो। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। कि सर महाराज, योर सन हैज टेकन बर्थ इन सच ए स्टार कि एक दिन इसकी डेथ भी हो जाएगी। व्हाट ए फनी, व्हाट ए सुपरस्टिशियस, व्हाट ए पुलिश स्टेटमेंट। कि जिस स्टार में बच्चे ने जन्म लिया है वो स्टार कहता है कि बच्चा एक दिन मर जाएगा। व्हाट ए स्टूपिडिटी। इट इज लॉ ऑफ गॉड, दोज हु टेक बर्थ ही और शी विल हैव टू डाई। ये तो इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते। और वो कहता है कि महाराज एक दिन ये बच्चा मर जाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ, ए मिरेकल टुक प्लेस। जो 10 दिन का बच्चा था, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल, अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको। 10 डे ओल्ड चाइल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, उसने बोलना शुरू कर दिया। क्या कहता है वो? ओ वाइज प्रोफेट। अब आप कहेंगे 10 दिन का बच्चा कैसे बोलेगा? ओवर हियर काल्की हैज हाईलाइटेड जस्ट यूनिकनेस, इम्पॉसिबिलिटीज विच में टेक प्लेस इन रॉयल फैमिलीज। ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट पर्पस क्या है राइटर का? ये बताना कि जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है कि वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। क्या कहता है वो? ओ वाइज प्रोफेट, मैं बोल रहा हूँ, इट वॉज आई हु स्पोक। तो ऑब्वियसली the astrologer and the others, they were looking here and there out of surprise from where they are getting the voice। अचानक उनको लगा अच्छा महाराज का बच्चा बोल रहा है ये। द चाइल्ड ऑफ द किंग इज स्पीकिंग। उसने कहा हाँ जी सर बताइए। उसने कहा सर, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। ये बच्चा बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। दीज वर्ड्स विच आर इन द ब्रैकेट, these words have been spoken by the child who is just 10 day old। कि महाराज, पंडित जी, जो पैदा होते हैं, दोज हु टेक बर्थ वन डे हैव टू डाई, उनको तो मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, आपकी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है हमें जानने के लिए। आप तो सीधा सीधा ये बताओ द सेंस इन, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ। आपकी प्रेडिक्शन की वैल्यू तो तब होगी जब आप मुझे ये बता दोगे कि व्हाट विल बी द कॉज ऑफ माई डेथ, तब मानूंगा मैं आपको। ये क्या बताया आपने? मुझे मरना है? अरे सभी को मरना है। आप तो ये बताओ ना कि व्हाट विल बी द कॉज ऑफ माई डेथ। रॉयल इन्फेंट अटर्ड, अटर्ड ध्यान से सुनिएगा। अटर, अटर का मतलब होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, अटर्ड। दीज वर्ड्स ए लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी वॉइस, जैसे माउस की वॉइस होती है। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर जो अभी तक शॉक्ड था, ही लिसन्ड द स्टेटमेंट ऑफ द बॉय, ऑफ द चाइल्ड, रॉयल इन्फेंट। अब बताना ही पड़ेगा क्योंकि इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग। तो उसने कहा महाराज, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। कि सर, सर यहाँ पर कौन? द किंग, फादर ऑफ टाइगर किंग। कि सर योर सन हैज टेकन बर्थ इन बुल स्टार। Bull and tiger are enemy. It means your son will die by the hands of tiger। तो आपके बेटे की डेथ किसके हाथों होगी? टाइगर के हाथों होगी। दिस इज माई प्रोडिक्शन। अब आप सोच रहे होंगे, राइटर कह रहा है, आप सोच रहे होंगे कि वो जो 10 दिन का बच्चा था वो डर गया होगा टाइगर का नाम सुन के, बट नो,
भाई टाइगर का राजा का बच्चा है वो, तो जो 10 दिन का बच्चा था वो ग्राउल, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बिवेयर। भैया चीतों को सावधान कर दो, मैं आ रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बिकॉज इन हिज वेन्स देर वॉज ए रॉयल ब्लड। तो डरने वाला नहीं था वो। जब उस 10 दिन के बच्चे को ये मालूम चला टाइगर विल बी द कॉज ऑफ माई डेथ, तो ये नहीं कहा उसने कि आई नीड प्रोटेक्शन एंड ऑल दैट, या देर वॉज नो साइन ऑफ फियर इन हिज वॉइस। क्या कहता है वो? लेट टाइगर्स बिवेयर। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि द टाइगर किंग टुक बर्थ, and when he was just 10 days old, his father called astrologer to know about his future, and Tiger King was declared that tiger will be the cause of his death. But the child did not terrify, on the contrary he showed bravery. अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में काल्की ने ये बताया कि टाइम केप्ट पासिंग, जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एंड इसमें एक पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ओवर हियर काल्की हैज़ एम्फेसाइज्ड वन वर्ड। क्या वर्ड उसने यूज़ किया? इंग्लिश। ये वर्ड उसने बार बार यूज़ किया, ये वर्ड बार बार आया। क्या मतलब है इस चीज़ का? वो बच्चा जो था, द रॉयल इन्फेंट लेटर हु बिकेम टाइगर किंग, वो इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था, इंग्लिश मूवीज देखता था, इंग्लिश नैनी उसको पढ़ाती थी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। वाई हैज काल्की यूज द वर्ड इंग्लिश सो मैनी टाइम्स? बिकॉज इन दोज डेज द वर्ड इंग्लिश वॉज रॉयल वर्ड। द पीपल, द चिल्ड्रन who were proficient in English, they were considered highly respected। क्योंकि ये तो आज भी जानते हैं आप लोग, इन टूडेज 21st century we people are running behind English and we are considering those highly educated who are fluent in English, and those who speak typical Hindi language, most of the time some people mock them। आप अपने स्कूल में ट्राई करके देखिएगा, try to speak in pure Hindi language, then you will see the result। It means आज भी कहीं ना कहीं हमारा mindset है कि those who are fluent in English, they are educated people, refined people। तो टाइगर किंग was given best upbringing। कोई भी चीज़ उसको इंडियन नहीं दी गई या लोकल नहीं दी गई, he was given everything royal। इसीलिए वर्ड इंग्लिश बार बार यूज हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, ध्यान रखिए।